بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بہت سارے بچے اور بڑے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور اپنا نام بنانا چاہتے ہیں. بعض تو براہ راست کہتے ہیں کہ جی ہم برانڈ بننا چاہتے ہیں. بسم اللہ، ضرور بننا چاہیے. یہ بننے کا ایک پروسیس ہے، اس کو جاننا چاہیے. جو باقی ہزاروں اور لاکھوں نئی نسل کے بچے اور بچیاں ہیں، اگر ان کو میں مخاطب کرنا چاہوں اور ان سے کہنا چاہوں کہ آپ عام سے بندے بن کے اگر زندگی سے گزر جاؤ گے، 60 سال 70 سال آرام سے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور اس کے بعد آپ کی سائٹیشن کوئی نہ ہو تو انفیکٹ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کو زندگی پہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کمایا، میں نے زندگی کو کیا دیا. سائٹیشن کیا ہے، اس بات پہ آج ہم بات کریں گے. یہ زندگی کا بہت اہم موضوع ہے اور چونکہ بہت سے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے آج چنا ہے اس موضوع کو، تاکہ ماؤں کو بھی علم ہو اور ان کے بچوں کو بھی علم ہو. اگر آپ آسانی سے جانیں تو جب پاکستان کی گورنمنٹ یا کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کسی کو اعزاز دیتی ہے، ایوارڈ دیتی ہے، خاص طور پہ جیسے یہ حسن کارکردگی کا تمغہ ہوتا ہے یا صدارتی ایوارڈ ہوتا ہے، تو اس لمحے صدر پاکستان سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، سیکٹری، وہ ایک کاغذ لیتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صاحب الف بے جیم پیدا ہوئے، یہ پڑھائی کی اور ان کے اس کارنامے پہ ان کو یہ ایوارڈ عطا کیا جا رہا ہے. دس از کالڈ سائٹیشن. مجھے یاد ہے میں نے پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے اس ڈگری میں جاب نہیں کی. یعنی اس کی جو مجھے جاب ملی وہ سرکاری جاب تھی. دین آئی پریفرڈ کہ مجھے سرکاری جاب میں نہیں جانا، اور اس سے آلموسٹ کم و بیش اتنے ہی پیسوں میں میں نے پرائیویٹ سیکٹر کی جاب کر لی، اور یہ سوچ کے کہ مجھے ساری عمر کسی ایک بندے کو سرو نہیں کرنا. میری پہلی جاب پاکستان کی بہت ممتاز جو یونیورسٹی ہے، یو ای ٹی، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں پہ ہوئی تھی وائس چانسلر کے پبلک ریلیشننگ آفیسر کے طور پہ. یہ میرے کنسرن ڈپارٹمنٹ، یعنی جو میں نے ڈگری کی تھی، میں نے ماسٹرز پبلک ایڈمنسٹریشن میں کیا پنجاب یونیورسٹی میں، تو یہ اس کا کنسرن ڈپارٹمنٹ تھا. پر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں پہلے لکھنے پڑھنے کا کام کر رہا تھا اور ایک پبلشنگ ادارہ تھا جو 62 سے کام کر رہا تھا، ادارہ مطبوعات طلبہ، اس کے ساتھ اس کا میں مینیجنگ ڈائریکٹر تھا یا محتمم تھا یا انچارج تھا اس کے طور پہ. تو مجھے ایک بزنس کا نو ہاؤ تھا. جب میں نے فیروز میں جاب کے لیے انٹرویو کے لیے گیا تو میرے پاس کوئی 20-25 بکس تھیں جو میں نے شائع کی ہوئی تھیں اور ان پہ ظاہر میرا نام لکھا ہوا تھا بطور پبلشر. اچھا، یہ وہ وقت تھا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اینڈ آئی اسٹیبلشڈ مائی سیلف ایز اے پبلشر. سو میرا کوئی پروفائل میں نے نہیں بنایا ہوا تھا، کوئی سی وی نہیں بنایا ہوا تھا. آئی مائی سیلف واز دیئر اینڈ دے انٹرویوڈ می، اور ساتھ میرا ثبوت کے طور پہ وہ تھی. تو میں نے وہ پہلی جاب کر لی بغیر کسی سی وی کے، بغیر کسی پروفائل کے. اس کے بعد جو وہاں میں نے کام کیا، 3 سال میں نے وہاں رہا فیروز میں. یہ پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت پبلشنگ ادارہ تھا. تو پہلے میرا اسسٹنٹ ایڈیٹر کا کارڈ بنا، پھر ایڈیٹر کا کارڈ، وزٹنگ کارڈ جسے کہتے ہیں، وہ بنا. آئی ڈونٹ نو کب سے میں سوچتا تھا کہ آپ جب بھی کوئی جاب چھوڑو، اگلے 6 ماہ میں پچھلی جاب آپ کا تعارف نہیں ہونا چاہیے، آپ کو نیا تعارف اسٹیبلش کرنا چاہیے. اس کے بعد جب میں نے نئی جگہ گیا تو میں نے اردو ڈائجسٹ والوں سے، ایک بچوں کا میگزین تھا، بچوں کا ڈائجسٹ اس کا نام تھا، بچوں کا ڈائجسٹ بڑا خوبصورت نام تھا اور اچھا چلتا ہوا تھا. تو میں نے اور طارق اسماعیل ساگر صاحب نے آدھے پیسے ڈال کے ہم نے یہ بزنس وینچر کیا. پھر وہاں سے میں نوائی وقت گیا، پھر نوائی وقت میں کو 13 سال رہا. اچھا، نوائی وقت والا بہت شاندار عرصہ تھا، پر یہ 13 سال میری پہچان بنا رہا. پورے ملک میں جاتا تھا، 60 سے زیادہ شہروں میں، 70,000 بچوں سے ہر مہینے ملاقات ہوتی، ان سے بات ہوتی، ان کو ٹریننگ کے لیے میں جگہ جگہ جاتا. اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ ویلیوز کا، یعنی اس سے پہلے یہ کانسیپٹ بھی نہیں تھا. چونکہ ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا تھا چیزیں جو دنیا میں نیا لٹریچر آ رہا تھا، نئی چیزیں، جو کمپٹیٹیو ایج ہے وہ آپ کو ملتے رہنا چاہیے. تو میری سائٹیشن بھی بڑھ رہی تھی. یعنی اسی زمانے میں میری 4 کتابیں آئیں تو جناب اشفاق احمد، جناب مستنصر تارڑ صاحب، ان لوگوں نے ان کتابوں کی انوگریشن کی. ظاہر وہاں انہوں نے میرے بارے میں کہا.
अब वो जो जुमले थे, हाँ, बानो ने एक किताब के बारे में लिखा, अमजद इस्लाम अमजद साहब ने लिखा, असगर नदीम सैयद साहब ने लिखा, तो ये सारी साइटेशन आपकी बढ़ती गई। आप अपने बच्चों को जब अपने साथ बिठाया करें स्कूल में, तो उनसे कहा करें कि बेटा अपने अब तक 10 साल की साइटेशन लिखो। साइटेशन ये होगी कि वो अपने बारे में खुद नहीं बता रहा होगा, यानी उसकी जो टोन होगी वो ये होगी, जैसे इस किताब पे, ये मेरी जो हाल ही में 3 किताबें आई हैं सेल्फ हेल्प पे, उसके बैक पे पब्लिशर ने लिखा है कि जनाब अख्तर अब्बास ने नस से एचआर में स्पेशलाइजेशन की, पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया, वो पब्लिक सर्विस मिशन के एडवाइज़र हैं, लाहौर एचआर फोरम के सीनियर मेंबर हैं, वो मुमताज़ ट्रेनिंग कंपनी हाई पोटेंशियल आइडियाज़ के चीफ इंस्पायरिंग ऑफिसर हैं, वो एक मारूफ प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अलावा असातिज़ा और तलबा की ट्रेनिंग से वाबस्ता हैं। वो इस वक्त, अच्छा जब ये किताब आई तो तब तक मेरी 37 किताबें आ चुकी थी, तो फिर उनका जिक्र है, फिर उनकी तादाद का कि 7.5 लाख वो बिक चुकी हैं। अगला जुमला उन्होंने मुझसे इंटरव्यू करने के बाद लिखा कि वो अपने रब के बेहद शुक्रगुजार हैं जिसने उनके कलम में तासीर, सोच में रुख, जिद्दत और कुव्वत बख्शी। अच्छा, ये जो चीज़ थी ये मैं फील करता था, अब भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये मेरा रब है जिसने मेरे कलम में या ज़ुबान में तासीर रखी है। और फिर आगे बहुत सी चीज़ें करने के बाद आखिर में उन्होंने लिखा कि उनकी तरबीती वर्कशॉप्स की खूबसूरती। अच्छा ख़ातिन हज़रात, मैं मुफ्त में तकरीरें करने का कभी आदी नहीं रहा। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, मुझे 2 लफ्ज़ों से हमेशा चिढ़ रही, मोटिवेशनल स्पीकर में अपने आप को कभी नहीं कहलाता। ये होता है जैसे आपको तकरीर आई हुई हो, सामने लोगों को बिठाए और आप उन्हें ख़िताब फरमाना शुरू कर दें। तो मुझे हमेशा से एहसास रहा कि मेरा वक्त भी कीमती है, सामने वाला का भी वक्त कीमती है। तो जो चीज़ आपने देनी है अगले ने, वो अपने हाथों पे, दिल के हाथों पे लेनी है, तो ही शुड पे, शी शुड पे, मुफ्त में क्यों मिले। दुनिया भर में जितने बड़े ट्रेनर्स हैं, चाहे वो कोवे हो, स्टीवन आर कोवे की बात कर रहा हूँ, या एंथनी रॉबिन्स है जो अमेरिका में है, तो ये लाखों रुपया चार्ज करते हैं। पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं था, सो पाकिस्तान में ये रिवाज फायज सियाल साहब ने डाला, और फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे मौका दिया। तब तक सोशल मीडिया नहीं आया था। सोशल मीडिया जब आया पिछले चंद सालों में, तो इसने एकदम से हाइप क्रिएट की, लोगों को जल्दी मारूफ होने का और मशहूर होने का मौका मिला। लेकिन इसमें एक और भी शानदार चीज़ ये हुई कि जब आप डिलीवर करने लगे तो लोगों ने साथ साथ आपको असेस करना शुरू किया कि इसकी बात दिल पे लगती है, इसकी बात किताबी है, इसकी बात कहीं सुनी सुनाई है, इसकी बात उन मौज़ूआत पे है। लाइक मेरे बारे में ये कहा जाने लगा कि जिन मौज़ूआत पे कोई बात नहीं करता, अख्तर अब्बास उन मौज़ूआत पे बात करते हैं। फिर ख़वातीन का ये था कि हमारे बड़ों जैसे हैं, भाइयों जैसे, जब हम हमें समझा रहे होते हैं तो बात हमारी रूह को छू लेती है, दिल को छूती है, और जो बात हमें कोई नहीं समझा पाता ये समझा देते हैं, और हम अपने आप को बदलने पे आमादा हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बदले। अच्छा, इस बीच में आप जैसे जैसे ब्रांड बनते जाते हैं, फिर आपके विजिटिंग कार्ड बनते जाते हैं, वो बदलते जाते हैं। मुझे याद है हर जगह का विजिटिंग कार्ड होता है। फिर जब हमने अपना अदारा शुरू किया, ये ब्रांड बना, इसका नाम था हाई पोटेंशियल आइडियाज़। तो हमने इसके फाइल कवर, यानी जब ट्रेनिंग होती है तो हम उसमें ये फाइल कवर, ये एक फाइल कवर को तकरीबन 40 रुपये का होता है, तो उस पर लिखा होता है सेमिनार, ट्रेनिंग, मेंटोरिंग, वर्कशॉप्स, पब्लिशिंग, और इस तौर पे अंदर उसका एड्रेस होता है। ये हर जो होता है पार्टिसिपेंट उसको दिया जाता है। जो मेन हमारा होता था वो था शार्पनिंग लाइफ्स। जैसे पेंसिल को हम शार्प करते हैं और तेज़ करते हैं, तो यानी जब से ये अदारा बना या जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हमेशा सोचता हूँ लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत हो, बेहतर हो, तेज़ हो, दिखते ही अच्छी लगे। और साथ हमने रखा हाई पोटेंशियल आइडियाज़, योर कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनर। ये बहुत साल ये चला, लेकिन फिर जैसे वक्त बदला, अच्छा हाँ, फिर आपको हर लिहाज से उसके साथ के इन्वेलप बनाने होते हैं। जब आप उनको असनाद देते हैं जिन पे जो ट्रेनिंग लेते हैं, लाइक ये हमारी सर्टिफिकेट है जो हम ट्रेनीज़ को देते हैं, इट इज़ हियर बाय सर्टिफाइड दैट, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन पे जो जो चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, फिर हम पिछले 4-5 साल पहले हमने फिर अपना जो ब्रांड था उसका कलर बदल दिया, तो अब हमारा ये कलर है, और चीज़ें वही हैं, लेकिन साथ साथ जो उसका सम था साइटेशन का वो भी थोड़ा बदला। 4 लाख नौजवानों की तरबियत का एजाज़, 30,000 असातिज़ा की तरबियत,
7 लाख से ज़्यादा किताबों की इशात, उम्मीद और ज़िंदगी से भरा नया जाविया हमारा नया ब्रांड बना। अदारों की तरजीह अव्वल बनने के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे की जाए, हम करियर करना सिखाते हैं, आगे बढ़ना, पर्सनालिटी ग्रूमिंग सिखाते हैं, ज़िंदगी आसान फैमिली काउंसलिंग हम सिखाते हैं, नाजुक तरीन फैसलों में कैरियर काउंसलिंग सिखाते हैं। तो इनफैक्ट ये बना। इसी तौर पे ज़ाहिर है ये लेटर हेड होता है जो आपके हर 1 साल के बाद बदल जाता है, उसमें चीज़ें आपकी होती हैं। अभी जो हमारे विजिटिंग कार्ड्स हैं उसके साथ ये 3 ब्रांड्स होते हैं, ये नाम होता है ब्रांड्स हैं। अभी जो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है अख्तर अब्बास वो है, नया जाविया है, हाई पोटेंशियल आइडियाज़ है। अच्छा, अभी जो बुक्स आती हैं तो उन पे हर बुक्स पे ये साइटेशन बदल जाती है। यह मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि बजाय इसके कि इंसान टामुकटोइयाँ मारता रहे और सोचे, क्योंकि जब भी मैं बच्चों से तारुफ लेता हूँ जो अपने जो मेरे पास आते हैं मुलाकात के लिए, तो नाम बताने के बाद उनके पास दूसरी बात बताने को नहीं होती कि मैंने ज़िंदगी को क्या दिया, मैंने ज़िंदगी से क्या सीखा। यहाँ भी दुनिया का हर बड़े से बड़ा आदमी बड़ा होने के बाद भी मुसलसल सीखता है, ट्रेनिंग्स में जाता है। लाहौर में एक अदारा है लम्ज़, पाकिस्तान का बड़ा अदारा है। हर बड़ा आदमी वहाँ जाके लाखों रुपया दे के 3-3 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन की ट्रेनिंग लेता है, अपने आप को रिफ़्रेश करता है। सो आप भी चाहे अपने आप को किताबों से रिफ़्रेश करें, अच्छे लोगों से बैठने से रिफ़्रेश करें, उनको सुनने से रिफ़्रेश करें, पर अपना जो ज़िंदगी का एक पूरा स्ट्रेट लाइन है उसको फॉलो कीजिए ताकि आपकी साइटेशन बने। साइटेशन ज़िंदगी में भी होती है और साइटेशन आपके मरने के बाद भी होती है। यानी जब इंसान फौत होता है तो अखबार में ख़बर किन सत्रों में लिखी जाएगी, इसमें क्या लिखा जाएगा, ये कौन साहब थे, ये क्या करते थे, ये किताबें लिखते थे, ये ट्रेनर थे, ये लोगों की ज़िंदगी संवारते थे। लाइक मैं लाइफ कोचिंग करता हूँ, इससे पहले ये लफ्ज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं होता था। हमारे यहाँ तरबियतकार भी इस्तेमाल नहीं होता था। हमेशा अंग्रेज़ी का लफ्ज़, चूँकि ट्रेनर थे ही 1, 2, 3 और वो भी कॉर्पोरेट अदारों के, तो अवामी सतह पे तो ट्रेनर थे भी नहीं। तो जैसे जैसे आप लफ्ज़ों को बामानी बनाते हैं और उनमें जान डालते हैं, ये आप में से जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने ये खैर डालनी है, उसकी कैपेसिटी और पोटेंशियल रखा है। ख़वातीन के अंदर भी, आप सारी उम्र क्लर्क बन के जीना और फौत होना चाहते हो, ओके बिस्मिल्लाह, इट्स योर चॉइस। आप सारी उम्र एक प्राइमरी स्कूल के टीचर बन के जीना, तनख्वाह लेना और सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहते हो, इट्स ओके। पर अगर आप इससे बड़ा जीना चाहते हो तो देन यू नीड टू डू समथिंग स्पेशल। वो होगा जो आपकी साइटेशन में दूसरे लिखेंगे। साइटेशन एक पूरा समंदर है, पर इस पे बात करते हुए इतनी सी देर में हम पूरी बात नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे आपके किसी और सवाल के साथ अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।